Hi, everybody. Trust your intuitions. Sometimes you just know that it is time to start something new and trust the magic of new beginnings. New beginnings. Today is 12th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 101. The most short-lived of all Britain's constitutional experiment in India was 1909, 1909 because 10 साल के अंदर ही 1919 आ जाएगा. मोनोपोली ऑफ ट्री ट्रेड 1833 में एंड हुआ था. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने एम्पावर किया था गवर्नर जनरल को टू इशू ऑर्डिनेंसेस. 1922 में British government finally agreed to hold the Indian Civil Services examination simultaneously in India and England. Montague Declaration 20th of August 1917 को ये रिफॉर्म्स का डिक्लेरेशन हुआ था. आज के सवाल हैं, Which one of the following gave the idea of Constituent Assembly for India? Which one of the following first mooted the idea of a Constituent Assembly to frame a constitution for India? Who among the following was the president of the Indian Constituent Assembly? Sachidanand Sinha ji was associated with which movement? Which one of the following statement is correct? ये 4 statements हैं, इनमें से correct क्या है आंसर. So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. Then this is vocabulary. पहला word है polyglot. Polyglot का मतलब होता है बहुभाषी, knowing or using other several languages. Brusque मतलब है अशिष्ट, abrupt, blunt, terse, abrupt और offhand in speech or manner. Quibble का मतलब होता है वक्रोक्ति. That means minor criticism, trivial objection या फिर a slight objection or criticism about a trivial matter. Hedonistic का मतलब होता है सुखवादी, engaged in the pursuit of pleasure, sensually self-indulgent. Decimation का मतलब होता है बर्बादी, the state or fact of being rendered or non-existent, annihilation. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. CSAT के ये 2 सवाल हैं. Try to answer these 2 questions. Then this is 12th of August और ये आज के 2 सवाल हैं. आज World Elephant Day भी है. So prepare a note on the conservation status of elephants in India. Identify the challenges and offer some suggestions. So ये पहला सवाल है. दूसरा सवाल है, what do you understand by the word disease burden? Prepare a note on the rising threat of zoonotic diseases because COVID-19 था. अभी आगे हम देखते हैं एक और zoonotic disease का threat बना हुआ है. So disease burden and zoonotic diseases. So these are 2 questions for today. Prepare these questions. Take a photograph of your answer copy and upload it on the website srajanindia.one. आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है. एलिफेंट रिजर्व वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, कॉरिडोर प्राइवेट रिजर्व लैंड होती है जहां एलिफेंट कंजर्वेशन के एफर्ट्स किए जाते हैं. 31 एलिफेंट रिजर्व्स हैं और दिस मच एरिया है. ये नोटिफाइड है बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल. एलिफेंट को रोम करने के लिए ह्यूज एरिया टेरिटोरी का रिक्वायरमेंट होता है. सो दिस इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे. मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज़ होती है या फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो होते हैं दीज कॉरिडोर्स में जैसे रोड्स हुआ या फिर एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में कोई फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट के बीच में कोई विलेज या ह्यूमन सेटलमेंट आ गया. वी हैव टू स्टॉप ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. Then this is energy from sun for a sustainable life. This is looking so beautiful. This is delicious. This is aam papad. It is a snack made from mango pulp and is a recipe for preserving mango to be eaten off season because mango का season जाने वाला है. So this is fruit की sheets हो जाती है तो इसका nutritional value भी है and ये जो मैंगो है ये हेल्प करता है सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी पीपल का हेल्प होता है बिकॉज स्कर्वी मतलब विटामिन सी डेफिशिएंसी. मैंगो इज़ देयर. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड गुड फॉर डाइजेशन. सो सी अब जैसे ये बनाया हमने आम पापड़, ये क्या हुआ? ये हुआ फूड प्रोसेसिंग. इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग.
सिंपल मैंगो था, उससे हमने फूड प्रोसेसिंग से एक प्रोडक्ट बनाया, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, इसको हम इजीली मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं हायर प्राइसेस में। सो दिस इज़ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? टेल। फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स बताइए। जैसे वन सच एग्जाम्पल इज दिस। देन दिस इज शहीद द्वीप, ये अंडमान एंड निकोबार में है। शहीद द्वीप 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ट्राई कलर फ्लैग किया था पोर्ट ब्लेयर में। ही ऑल्सो अनाउंस द आइलैंड्स द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ओके, सो दिस इज शहीद द्वीप अंडमान एंड स्वराज द्वीप इज निकोबार। ये इंडिया का जर्नी है सिंस इंडिपेंडेंस। लुक एट द नंबर्स, 46% से 67% मैसिव जंप हुआ है वोटर टर्नआउट में, एंड जो 5-fold इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस में भी। सो दिस इज गुड, डेमोक्रेसी इंडिया का स्ट्रेंथ है। देन अभी चल रहा है हर घर तिरंगा कैंपेन, और फ्लैग कोड में सर्टेन चेंजेस किए गए हैं। पहले ये रूल था कि फ्लैग को सनसेट के टाइम पर हमें फ्लैग को लहराया नहीं जा सकता था, बट अब 24 घंटे तिरंगा को आप फहरा सकते हैं। Then this is such a good news. First batch of women cadets in NDA. 19 girls are part of the batch. 148th course है. Undergo the same training as male counterparts. So this is really good. So this is social media. Now let us look at your comments. ये है 11th of August 2022. PDFs का give me some time, मैं वापस PDF notes बनाना start करूँगा. Actually it takes a lot of time, तो for time being उसको stop किया है, मैं उसको resume कर दूँगा. Then this is Harjinder, this is really good. Yes, we will continue. Every day means every day. Rafael Nadal, yes. और टोटल अगर मेन एंड वुमेन दोनों इंक्लूड कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स किसके हैं? आंसर यस। ओके, नोट्स वी विल बिगिन अगेन। दिस इज गुड। हैप्पी रक्षाबंधन। करंट अफेयर्स नोट्स हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज क्विज, वेरी गुड राम नरेश, प्रीति, समीर, अरविंद, गौतम, CSAT second question, okay, I'll see. Then Ajay, Election Commission of India, very good, short note. Nandini, Sameer, Arvind, and this is Gautam, very good. And regarding your answer submissions, तो ये दो सवाल थे। पहला तो बड़ा आसान सा सवाल था, कॉमनवेल्थ गेम्स हमने देखा, इंडिया ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया, इसको समराइज करना था और पूरा इसको कंसोलिडेट करना था। द रीज़न बीइंग, ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कुछ टाइम बाद आप ये सब भूल जाओगे, बट अगर आपने कंसोलिडेट किया है सो जब एग्ज़ाम आएगा आपको जस्ट एक क्विक ग्लैंस देखना है और सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएगी। सो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ दीज प्रिपेयरिंग सच नोट्स। सेकेंड था ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। अब सी यहाँ के सबमिशंस हैं। रत्ना प्रिया, दिस इज सो गुड, कॉपी इतना अच्छा हो गया है। सी फर्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट, देन दिस, देन डायग्राम, वेरी गुड। कल्चरल सेफगार्ड, पॉलिटिकल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ट्राइब्स एम्पावरमेंट, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड। सी ट्राइब्स क्या होते हैं, ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स का क्या प्रोविजंस हैं, मेजर ट्राइब्स स्टेट वाइज बताया आपने, गुड, इनसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। देन कंडीशनल प्रोविजंस बताए यहाँ पे, वेरी नाइस। पॉलिटिकल सेफगार्ड, वेरी गुड। ट्राइफेड एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, रत्ना प्रिया, दिस इज पावर टू चेंज द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट। अब हमने सारे मेडल्स जो इम्पॉर्टेंट है उसका यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस इज सिल्वर, ब्रोंज एंड गोल्ड। श्रवण, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर साल हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो UPSC हो या PSC हो, जनजाति है, बिकॉज दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ वेरी नाइस, यहाँ पे प्रिपेयर किया, समराइज किया नोट, दिस इज़ एक्सेलेंट। शुभांगी, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। ट्राइब्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी गुड। सी सारे यहाँ पे हमने समराइज कर दिए, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सारे पॉइंट्स, वेरी नाइस। देन दिस इज PVTG ट्राइफेड, वेरी गुड। देन यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स पे भी हमने प्रिपेयर किया, गेम्स के बारे में एक फेयर आइडिया होना चाहिए। देन दिस इज नंदिनी, कॉमनवेल्थ गेम्स पे नोट तैयार किया। सी जब भी हम लिखें ना, ऐसे एरो हम ऐसे बना सकते हैं स्लांट, बट राइटिंग हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में लिखना है हमें। ओके, दिस इज़ रियली गुड। सारे प्लेयर्स का नाम बताया आपने, वेरी गुड।
सो स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स हमको फॉलो करना चाहिए. दिस इज़ रियली रियली गुड. Okay, this map, this is really good. Tribes of India. Then Kirti, this is again really good. See, this is very nice. Tribes of India, rotate, origin, states. अब tabulate किया है. This is such a good strategy. Very good. See, ये simultaneously हमारा एक पूरा chapter तैयार हो गया. Very nice. Then this is अमरजीत. Very good. हिंदी में आप बहुत अच्छे से लिखा है आपने. See, बहुत सिस्टमेटिक है आपकी राइटिंग और आपने अच्छा लिखा है. दिस इज़ रियली गुड, वेरी नाइस. आरती, दिस इज़ अगेन रियली गुड, वेरी गुड, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड द कॉन्टेंट इज़ ऑल्सो रियली गुड. यू आर डूइंग रियली रियली गुड. चंदन, वेरी नाइस. सी, सो नाइस, कितना सिस्टमेटिक एंड नीट एंड क्लीन है. एवरीथिंग इज़ लाइक सो रीडेबल, तुरंत समझ में आ रहा है क्या लिखा है, कहाँ लिखा है. वेरी नाइस, दिस इज़ गुड. तो कॉपी जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे ना उतना ही आपके वो चीज़ फेवर में जाएगी, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर करता है. पालिका, दिस इज़ अगेन रियली गुड. कंटेंट वेरी नाइस. मैप थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं. सी, कितना डिटेल में सारी ट्राइब्स बताए यहाँ पे. वंडरफुल. देन दिस इज़ रियली गुड. हरजिंदर, दिस इज़ अगेन रियली नाइस. ट्राइब्स इन इंडिया, वेरी गुड. कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, सारे ट्राइब्स पे हमने तैयार कर लिया. ये सुंदर की कॉपी है. वेरी गुड आंसर वंस अगेन. कॉमनवेल्थ के बारे में लिखा. रोटेट दिस पेज. सी, सारे यहाँ पे आ गए स्पोर्ट्स पर्सन्स. वेरी गुड. तो हमें इन स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में भी पता होना चाहिए. ठाकुर, दिस इज़ अगेन रियली गुड. सी, बर्मिंघम गेम्स से रिलेटेड फैक्ट्स हैं सारे. वेरी गुड. ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे हर साल एक सवाल आता है. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इसके पॉलिटिकल क्या पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक पॉइंट्स क्या हैं, जोग्राफी, इकोलॉजी, एवरीथिंग. Ptolemy, this is again really really nice. Shorter first intro paragraph, second paragraph, essential features, tribal population census, then map. See, heading, subheading, very good strategy. Then polity का भी है, administrative, trifed, economy, development, PVTGs, fantastic. This is really really nice. Then displacement, very good. Ram Naresh, this is again really good. बहुत अच्छा आंसर है आपका. सी, सारे रसलर्स एंड दिस स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे. वेरी नाइस. देन ये PVTGs है. दिस इज ऑल्सो रियली रियली गुड. वेरी नीट एंड क्लीन कॉपी. यस. देन सुंदर, ट्राइबल पॉपुलेशन आर्टिकल्स. कीर्ति, सी, दिस इज रियली गुड. सुंदर, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो. इसी तरीके से कंटिन्यू करना है. आपने स्कीम्स भी यहाँ पे लिखा है. फैंटास्टिक. Then President of India, very good. Then Kirti, this is again really good. Very neat and clean work. आपका जो कॉपी है और प्रेजेंटेशन है ये एक्सेप्शनल है. This is अफसाना, very good. Achievements, see, segregation कितना अच्छा है. Emerging talent, अब देखो ये अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा, emerging talent. तो सी, क्वेश्चन सब वही, आंसर वही सब लिखते हैं, बट अप्रोच चेंज हो जाता है. किस तरीके से आपने नज़रिया बदल जाता है. तो देखो इमर्जिंग टैलेंट लिखा, स्पोर्ट्स के बारे में अचीवमेंट्स लिखा. वेरी गुड. डिफ़िकल्टीज भी बताया. फैंटास्टिक. ट्राइब्स के बारे में भी. अब ये मैप भी बहुत अच्छा मैप है. दिस इज़ रियली गुड. ST की पॉपुलेशन इनिशिएटिव्स. फैंटास्टिक. दमन, दिस इज़ अगेन रियली गुड. प्रिपेयर अ नोट. ट्राइब्स 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखने हैं हमें. ट्राइफेड, चैलेंजेस भी लिखने हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिखने हैं. ओके, सो ये सारे आपके सबमिशंस थे. इसी तरीके से आंसर राइटिंग कंटिन्यू करना है. 2 फ़ायदे हो रहे हैं. डेली हम कुछ ना कुछ आंसर लिख रहे हैं, कलम चल रहा है. दिस इज़ गुड. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. दूसरा फ़ायदा है आपके सेल्फ रिटन नोट्स बन रहे हैं. और तीसरा फ़ायदा है कि एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी हो रही है. आपकी स्टडी ऑन ट्रैक है, ऑन ट्रैक. ओके, सो दिस इज़ रियली गुड. पार्टिसिपेट. Now let us come to the Hindu newspaper. So this is the first page और पहला न्यूज़ है India slams China for blocking move against GEM deputy chief. So again ये जो टैक्टिक्स हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, UNSC में, जो परमानेंट मेंबर्स फॉलो करते हैं, ये कॉज ऑफ वरी है. और वो टैक्टिक है से वीटो पावर का. UNSC डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. सी, तो इंडिया यहाँ पे जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का एक स्टार्ट किया था और इसको स्टॉप कर दिया चाइना ने. एंड इंडिया कॉल्ड पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड एविडेंसेस ऑफ चाइनास डबल स्पीक ऑन पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म. दैट इज़ वाई इंडिया बार बार बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. इससे पहले भी चाइना ने इस टाइप का एक्शन लिया है.
इससे पहले भी से 2008, 10, 2019, 22 यूएनएससी में कॉन्टीन्यूसली जो है चाइना वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स को डिफेंड करता हुआ यहाँ पे नज़र आया है. सो दैट इज़ वाई यूएनएससी के रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ डबल स्टैंडर्ड्स, दिस इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड. एंटायर सैंक्टिटी ऑफ द वर्किंग मेथड्स ऑफ यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी पे यहाँ पे सवाल उठते हैं. सो दिस इज़ देयर. Ministry of External Affairs officials declined to comment on whether the government had requested China to support the listing, although MEA officials discussed proposals during UN coordination with the number of countries recently, and 14 of the 15 UNSC member had supported the proposal. But एक country है this C factor और उसने यहाँ पे इसको stop कर दिया. So this talks about this double standard, because जो terrorism है, terrorism के लिए world को unite होना ज़रूरी है, world को unite होना ज़रूरी है against this terrorism. So this is there. Then for drawn, this is boat capsize हो गई in उत्तर प्रदेश, boat capsize हो गई यमुना में because of strong winds. तो vessel यहाँ पे overturn हो गया और ये this unfortunate accident हुआ. Supreme Court against de-recognizing parties over freebies. Freebies से क्या होता है, इलेक्शंस एट टाइम्स मैनिपुलेट हो जाता है, ये इलेक्टोरल ब्राइब का तरह भी इसको बोला गया है. इरैशनल फ्रीबीज. अब सी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रीबीज अलग चीज़ होती है, वेलफेयर मैकेनिज्म अलग होता है. फ्रीबीज एंड वेलफेयर. सो वेलफेयर जो है ये हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मेन स्टे है. बट फ्रीबीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑब्जर्वेशन रेज किया था कि एट टाइम्स इससे सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन जो है वो डिफीट हो जाती है. केयरफ्री प्रोमिसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज and actual government welfare schemes were as different as chalk and cheese. One leads to sheer loss to the economy while the other feeds the poor and distributes care during COVID-19. So let us see अभी इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है. बट हमें एक फेयर अंडरस्टैंडिंग रखनी है फ्रीबीज और इससे एसोसिएटेड इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड द नेसेसिटी ऑफ वेलफेयर इज इम्पॉर्टेंट. Then Dhankar Saab sworn in as Vice President. Inspired to be ever in service of Bharat, he tweets after visit to Rajghat. तो आप हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी greets Vice President Jagdeep Dhankar ji at the Rashtrapati Bhavan on Thursday. तो Mr. Jagdeep Dhankar was sworn in as the 14th Vice President of India at a brief oath-taking ceremony at the Rashtrapati Bhavan. बहुत बहुत बधाई. यहाँ पर ऐसा यहाँ स्टेटमेंट आया, एक्सचेंज दिस ग्रीटिंग्स, फेल्ट ब्लेस्ड, इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, ऐसा धनकर साहब ने यहाँ पे बताया. सो दिस इज़ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन दिस इज अगेन अनफॉर्चुनेट, मिलिटेंट्स टारगेट आर्मी कैंप्स, दिस सिक्योरिटी पर्सनल नियर द एनकाउंटर साइट एट धारा. तो दैट इज़ वाई जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट है, इसका कोई प्लेस नहीं है सिविलाइज्ड मॉडर्न वर्ल्ड में. सो दिस इज टेररिज्म. So this is the front page of the Hindu. Then this is second page. Mask mandate back in city. Violators to be fined ₹500. COVID-19 के cases बढ़ रहे हैं. Mask is back. Fine not applicable to those traveling in private four-wheelers, but let us make it a habit. COVID appropriate protocol सबको follow करना है. Then ये traffic advisory है 15th of August के लिए. Then this is नेक्स्ट पेज. ये है अ साइट टू बिहोल्ड. लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर. टूरिस्ट एंजॉय द व्यू ऑफ दिस फॉल्स एट चेरापूंजी इन मेघालय ऑन थर्सडे. इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस जगह पे होता है, चेरापूंजी या मौसिनराम? आंसर, रेनफॉल चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा होता है या सबसे ज़्यादा रेनफॉल मौसिनराम में होता है? वेटेस्ट प्लेस कौन सा है और इसका जोग्राफिकल रीज़न भी बताइए. मैंने एक बार आपको बताया था गारो खासी जयंतिया फनल टाइप एक्ट करते हैं, यहाँ से मानसून विंड्स आ रहा है और यहाँ पर हैवी रेन्स हो जाता है. सो टेल द रीज़न, एग्जैक्टली क्या रीज़न है दिस चेरापूंजी और जो मौसिनराम है, मेघालय है, यहाँ पर इतने हाई रेनफॉल होने का. मेघालय जो है ये अबोर्ड ऑफ दिस अबोर्ड ऑफ दिस क्लाउड, मेघालय, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड एंड रेनफॉल ज़्यादा है मेघालय. Then this is next page and a salam like no other. 25 years. This is A.R. Rahman का popular song मा तुझे सलाम. This is तिरंगा.
प्राइमरली इस आर्टिकल मेट्रो प्लस में जो थीम है वो है पार्टीशन जो हुआ, और पार्टीशन एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। पार्टीशन एक बहुत बड़ा ब्लोट है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ एंड कैपेसिटीज़ में, बिकॉज पार्टीशन जिस तरीके से हुआ, हमने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मेंस बैच में अभी पढ़ा, पार्टीशन जिस तरीके से हुआ प्लस जिस तरीके से मिलियंस ऑफ पीपल को माइग्रेट करना पड़ा अक्रॉस द बॉर्डर, और उससे रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आए, कम्युनल वायलेशन, कम्युनल वायलेंस हुआ। ये जो एक बहुत बड़ा ब्लॉट है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और एक बहुत पेनफुल चैप्टर है इंडिया की हिस्ट्री का, पार्टीशन सेंटिमेंट्स। पेन ऑफ माइग्रेशन, सिंधी फैमिली रिकॉल्स देयर डार्क डेज एंड हाउ दे फॉट पॉवर्टी पोस्ट 1947, बिकॉज पीपल को मूव करना पड़ा फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम से जो न्यू कंट्रीज में, दिस पाकिस्तान, हियर पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट एंड हियर इन बांग्लादेश साइड दिस। सो ये जो मिलियंस ऑफ पीपल का मूवमेंट हुआ, दिस कॉज्ड ह्यूज मिजरी। Then 1,000 rarely seen artwork at Independence Day Expo in Kolkata, and this is life hit in Maharashtra following heavy rainfall. आज एडिटोरियल आया ही नहीं है द हिंदू में। अनएम्प्लॉयड यूथ नंबर बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। आयरन ओर प्राइस का सर्ज हुआ है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बताया। आयरन ओर क्या होता है? ओर की रॉ मटेरियल होता है, आयरन ओर की रॉ मटेरियल होता है जो यूज़ होता है स्टील में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, एंड मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ मिनरल डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रेट्स ऑफ स्टील। अब ये जो स्टील है ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये स्टेटस ऑफ इकोनॉमी को बताता है स्टील। नेपाल को असिस्टेंस दिया जा रहा है, नेपाल चाइना रिलेशंस अग्रीड टू प्रमोट फर्दर कोऑपरेशन, connectivity, trade, investment, health, tourism, poverty alleviation, agriculture, disaster management, education, culture, people to people exchange among others. Digital currency, drought in Somalia, UNHCR ने कहा। Now this news is about what is the Criminal Procedure Identification Act 2022. Criminal Identification, see, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि इन पास्ट भी ऐसा कोई क्राइम हुआ था, ये फर्स्ट ऑफेंडर है या फिर रेगुलर ऑफेंडर है, और इन फ्यूचर भी उसका रिकॉर्ड रखने का प्रोविज़न होगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर दें कि ये क्रिमिनल सेम है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं। सो दैट इज़ वाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी हमें एक डेटा रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट इज़ वाई ये आया है नया बिल अमेंडमेंट, दिस इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। 1920 का जो एक्ट चला आ रहा था आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट 2020, इसको इस नए एक्ट ने रिप्लेस किया है, बट इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है, इसमें लीगल सैंक्शंस है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कि जो कॉन्विक्ट्स हैं, गुनहगार हैं, उनका मेजरमेंट लिया जा सकता है, बॉडी मेजर्स, पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉन्विक्ट्स का मेजरमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड की कर सकती है दिस लीगल एनफोर्समेंट एजेंसी। सो ये नया एक्ट है, 1920 के एक्ट को इसने रिप्लेस किया है। आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है? जैसे जो उसको अरेस्ट किया है, पहली बार अरेस्ट है या पहले से अरेस्ट हो चुका है, या फिर उसको सिमिलर ऑफेंस के लिए रिपीटेड हैबिचुअल ऑफेंसर है, वो ऑफेंस किया है उसने, या फिर कोई प्रीवियस कॉन्विक्शन हमें वहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, तो उसका फोटोग्राफ हुआ, बॉडी हाइट, वेट एट्सेट्रा रिकॉर्ड करने का प्रोविज़न पहले भी था। तो ये प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन 1920 में क्या था? अरेस्ट, मेयर अरेस्ट डज नॉट गिव देम द राइट टू सर्च अ पर्सन। देखो, इंडिया पुलिस स्टेट नहीं है, इंडिया इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो सेफगार्ड करते हैं हर इंडिविजुअल को फ्रॉम स्टेट। सो इंडिया इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। पुलिस हैज़ पावर टू अरेस्ट, मेयर अरेस्ट डज नॉट गिव देम द राइट टू सर्च अ पर्सन। पुलिस को लीगल सैंक्शंस चाहिए कि उस पर्सन का डेटा एट्सेट्रा एविडेंसेस वो कलेक्ट कर पाए। लीगल सैंक्शंस आर डिजाइन एज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इन प्रोसिक्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। तो
केवल अरेस्ट नहीं, अरेस्ट से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करना है, एविडेंसेस कलेक्ट करना है, वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर इसमें एक अलग से एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए 1920 का नेसेसिटी हो गया था। अब उस टाइम पे डेटा कलेक्ट करने का मतलब था फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो ये दो डेटा कलेक्ट किया जाता था। साइंटिफिक यूज़ ऑफ फिंगर इम्प्रेशन एंड फोटोग्राफ से डिटेक्शन ऑफ क्राइम होता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स होता था। बट अब आ गया है 2020-22 और इसमें अमेंडमेंट की पहले भी बात आई है। 1980 में 87th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ये सेवरल अमेंडमेंट्स भी सब प्रपोज किए गए, जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा केस में भी अमेंडमेंट की बात थी। एक्ट स्कोप जो है पाम इम्प्रेशन का, राइटिंग, वॉइस, इन सब को भी क्या कलेक्ट किया जा सकता है, इन सब पे डिस्कशन हुआ और इन सब का अब कंसोलिडेशन है दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो यहाँ हाइलाइट्स क्या है कि लीगल सैंक्शन टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है फॉर द कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट कलेक्ट किया जा सकता है और एक डेटाबेस भी मेंटेन किया जाएगा, डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा। स्टेट लेवल पे हर राज्य को ईच स्टेट इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई एप्रोप्रिएट एजेंसी टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व दिस डेटाबेस ऑफ मेजरमेंट। और ये डेटा मेजरमेंट जो है वो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एजेंसी के थ्रू मैनेज, प्रोसेस, शेयर और डिसेमिनेट किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये एक डेडिकेटेड बॉडी है, ये रिकॉर्ड सारा जो क्रिमिनल रिलेटेड रिकॉर्ड होता है उसका एक ये मेंटेन करती है सारा डेटा सेट। तो NCRB इसमें इन्वॉल्व रहेगा। अब कंसर्न्स क्या है यहाँ पे? कंसर्न्स ये है कि जो डेटा कलेक्शन एट्सेट्रा है इसमें राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी आ जाता है। पुट्टास्वामी जजमेंट था कि अगर प्राइवेसी को इंट्रूड कर रही है गवर्नमेंट तो एक बैकिंग होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए और वो प्रपोर्शनेट होना चाहिए, प्रपोर्शनेट होना चाहिए, अनप्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए और वो जितना नेसेसरी हो उतना ही करे। सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ताकि जो प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो ओवरकम नहीं हो। अब बात है यहाँ पे कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है इस डेटा को कब तक स्टोर किया जाएगा, ये जो डेटा है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे इसमें ये लिखा था, जैसे 1920 का भी जो एक्ट था कि किस टाइप के क्राइम्स का डेटा आप रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर क्राइम सीवियर क्राइम है, हीनस क्राइम है, देन आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे आप बॉडी डेटा भी रिकॉर्ड कर रहे हो, ब्लड सैंपल्स भी ले रहे हो एट्सेट्रा, आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स एट्सेट्रा। बट अगर वो हीनस ऑफेंस नहीं है, पेटी क्राइम है कोई, देन उसमें भी आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो और से 75 ईयर्स तक वो डेटा स्टोर्ड रहेगा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा पुट्टास्वामी केस के अगेंस्ट। बायोलॉजिकल सैंपल्स ले रहे हैं तो इसमें राइट टू बॉडी प्राइवेसी का एक मैटर आ जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास CCTNS है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इस पे भी सवाल ये थे कि ये काइंड ऑफ लाइक कैन बी यूज, जो डेटा एंड CCTNS का कॉम्बिनेशन है, ये एक सर्विलेंस का मॉडल बन सकता है। सो द पॉइंट इज स्टेट बैक्ड सर्विलेंस एंड स्टेट का इंट्रूजन इन राइट टू लाइफ में कैसे चेक किया जाए। आर्टिकल 23 भी है, कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड दैट प्रेजेंट लॉ वायलेट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द पॉइंट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद की गवाही आप नहीं दे सकते, बट यहाँ गवाही की बात नहीं है। बायोलॉजिकल जो सैंपल है ये लाइक नॉन कम्युनिकेटिव एविडेंसेस है, नॉन कम्युनिकेटिव। तो अगर बायोलॉजिकल सैंपल के थ्रू अगर एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है, जैसे DNA सैंपल एट्सेट्रा, तो वो 23 के अंदर नहीं माना जाएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले भी हुआ है DNA टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, बट अगेन बात यही है, पुट्टास्वामी केस जो बोलता है कि ये प्रपोर्शनेट होना चाहिए और इसका मिसयूज़ का प्रोसीजर हमें नहीं रखना चाहिए, मिसयूज़ कम होना चाहिए। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। फर्स्ट है ही इज ट्राइंग टू पेंट द लिली, मतलब लिली इज ऑलरेडी परफेक्ट, तो परफेक्ट एक्सेलेंट चीज़ को और बेटर करने का यहाँ पे है। देन टू गिल्ड रिफाइन गोल्ड टू पेंट द लिली। Die hard fan. A die hard is one who will stick to his opinion or opinions at all costs. Die hards resist change and innovation. Like he's a die hard conservative. Then I care a straw for him, मतलब I care a straw for him. It is not I don't care a straw for him. It is मतलब you don't care. It means I don't care for him at all.
दिस इज ईडियम, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज. देन एडवाइस और एडवाइज होता है. एडवाइस इज अ नाउन एंड एडवाइस इज अ वर्ब. लाइक आई वॉन्ट योर एडवाइस, CE नाउन. नो अमाउंट ऑफ एडवाइस इज गोइंग टू चेंज हिम. एंड वर्ब मतलब आई एडवाइज, दिस इज एन एक्शन, एक्टिविटी. आई एडवाइज्ड हिम टू अप्लाई फॉर द जॉब. ही एडवाइज्ड मी टू सी द डॉक्टर. लाइक दिस. ओके, so this is there. Then this is UNMOGIP. What is this? This is United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इस पे पीस, लॉ, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए यूएन ने एक बॉडी बना रखा है. दिस इज UNMOGIP, मिलिट्री ऑब्जर्वर, यूनाइटेड नेशंस का है ग्रुप, ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये रिजोल्यूशन 39 जनवरी 1948 में बना था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन में. अभी इसका जो चीफ है, उसका अभी न्यू जो हेड है वो है दिस गुलेर्मो रायोस. ये एक न्यू चीफ है. ही इज़ प्रोबेबली इटालियन. तो ये एक नए यहाँ पे अभी चीफ बने हैं इसके. ओके, ये सीज़ फायर जो लाइन है, जम्मू एंड कश्मीर सीज़ फायर लाइन है, इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे. ओके, so rear admiral Rios will follow this in this. Okay, then divergent policies. अब देखो इंडिया ने ये जो ग्रुप बना है, ऑल्दो इसका अब इतना रेलेवेंस रहा नहीं है. 1972 के बाद इंडिया कभी यहाँ पे गया नहीं किसी भी बात का वायलेशन जो होता है, बिकॉज इंडिया का भी टेंडेंसी ये रहा है हमारा कि दिस इज़ बायलैटरल इशू. हम यूजुअली इस सारे इशू को बायलैटरली ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इवन जो यूनाइटेड नेशंस या ऐसी जो बॉडी है, उसके लिए भी वी डोंट गो. 1972 के बाद नहीं गए. तो दिस इज़ दैट. Then India and Bangladesh review defense relations during meet. Defense relation during meet. अब आपको इंडो बांग्लादेश नोट तैयार करना था. दिस इज इम्पॉर्टेंट. कोविड-19 इम्पैक्ट इकोनॉमी एंड हेल्थ बोथ. 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी है इंडिया ने डिफेंस आइटम्स के लिए यहाँ पे दिया है. ये जो वर्ड है लाइन ऑफ क्रेडिट, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं. लाइन ऑफ क्रेडिट अभी श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ा था, नेपाल में भी पढ़ा, नाउ बांग्लादेश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन ऑफ क्रेडिट? डेमोक्रेसी रैंकिंग मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. डेमोक्रेसी रैंकिंग मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. अब सी, आप बताओ आपके लिए डेमोक्रेसी के 5 पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? What could be the 5 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेटिक हेल्थ को हमें देखना चाहिए? 5 पैरामीटर्स. जैसे एक पैरामीटर हो सकता है रेगुलर टाइम बेस्ड इलेक्शन. टाइम पे चुनाव होना ज़रूरी है, ये एक पैरामीटर है डेमोक्रेसी का. टाइमली इलेक्शन मतलब डेमोक्रेसी इज़ हेल्दी. ऐसे आप और 5 पैरामीटर्स बताओ डेमोक्रेटिक हेल्थ को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 10. ओके, देन दिस इज सैटेलाइट मिशन में डिफ़िकल्टी आया. ड्रग्स शॉर्टेज हॉन्ट्स HIV पॉजिटिव कम्युनिटी. सो दिस इज़ दैट. ब्लड जो होता है ना, जैसे अभी एक न्यूज़ भी आ रहा था, टैटूइंग करते हुए कुछ पर्सन को HIV पॉजिटिव हो गए. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. निडल्स हुआ, इवन जो रेजर्स हुए, you should be careful. Shortage haunts HIV positive community. Youth employment declined in India, and this is China's का PLA museum highlights 1962 war. गलवान वैली क्लैशेस. अब जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इससे पहले जो डॉक्ट्राइन थी चाइना की थी वो थी माओ जेडोंग, एंड देन इसके बाद माओ जेडोंग फिलॉसफी थी. माओ जेडोंग फिलॉसफी था स्टैंड अप. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फिलॉसफी आई वो थी इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है. और अब जो फिलॉसफी आई है वो है आर्मी, दिस डिफेंस और दिस फोर्स जो है इसमें सुपर पावर बनना है, मिलिट्री सुपर पावर. दिस इज शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन. सो चाइनाज PLA's म्यूजियम हाईलाइट्स 1962 वॉर. मेन फोकस है एग्जीबिशन मिलिट्री म्यूजियम पे. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कंट्रीब्यूशन, ताकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो बड़े लीडर हैं चाइना के, उनकी लीग पे यहाँ पे उनको रखा जा सके ऑन पार विद से माओ जेडोंग. सो दैट इज़ वाई चाइना अभी मिलिट्री इतना एग्रेसिव हो गया है. 1962 वॉर को हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे. अभी गलवान क्राइसिस है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है. सो दिस इज़ अगेन चाइनाज पॉलिसी. एंड इस पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिवेंजफुल राइज और वन चाइना पॉलिसी विच इज़ क्रिएटिंग ऑल टाइप ऑफ टेंशंस. ताइवान सेज चाइनाज थ्रेट स्टिल रिमेन्स. चाइना इतना नेपाल को असिस्टेंस दे रहा है. चेकबुक डिप्लोमेसी. ये जूनोटिक डिसीजेज है. ये है श्यू.
अब चाइना में फिर से इन्फेक्शन फैल रहा है, दिस लांगिया वायरस फाउंड इन शूज़। तो अभी तो कोई एविडेंस नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का। कोविड-19 के टाइम पे भी ऐसी ही बातें बनाई जा रही थी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई एविडेंस नहीं है कोविड-19 वायरस का, बट लेटर ऑन हमने देखा। सो द वायरस इज कॉल्ड दिस एंड पेशेंट्स रिपोर्टेड सिम्टम्स लाइक, ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर सिम्टम्स दिख रहे हैं, इम्पेयर्ड लिवर किडनी फंक्शंस भी यहाँ पर है। तो अभी तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है, कोई केसेस नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एट्सेट्रा। लेट अस सी। देन दिस इज स्पोर्ट्स रियल मैड्रिड। द इंडियन एक्सप्रेस हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ, चाइना ब्लॉक्स इंडिया यूएस बिड टू लिस्ट जैश दिस डेप्यूटी चीफ एज ग्लोबल टेररिस्ट। सो दिस अगेन टेल्स चाइना पाकिस्तान का क्लोज टाइज, बैकिंग हो रहा है यहाँ पे जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट। Then this is again very painful. Bullying is bad. Bullying is bad. Bullying is very bad. To belittle others is to be little. Okay? और जो भी ऐसा बुली कर रहा है, ओपिनियंस पास कर रहा है, जजमेंट पास कर रहा है, ट्राइंग टू मॉक, ट्राइंग टू बिलिटिल अदर्स, ये बहुत वीक होते हैं, ये बहुत कॉवर्ड होते हैं, इनको अपफ्रंट फेस करना चाहिए। दे आर वेरी वीक, कॉवर्ड, इनसिक्योर, दैट इज वाई दे फाइंड प्लेजर इन टू बिलिटिल अदर पीपल। सो ओके, डरना नहीं चाहिए इनसे, अपफ्रंट फेस करना चाहिए। एंड ऑलवेज टेल योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स एंड फैमिली और टीचर्स इफ यू हैपन टू लाइक बुलिंग का कभी भी यहाँ पे ऐसा कोई केस आए, कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा इनको फेस करना चाहिए। दे आर कॉवर्ड्स। ओके, यस, सो दिस इज देयर। Staring at looming drought, Jharkhand farmers ask what will we grow and what will we eat. So see, agriculture difficulties. This is Rakhi gift. Prime Minister Saab gives a tricolor to a girl who tied him Rakhi during Raksha Bandhan. हर घर तिरंगा प्रोग्राम। देन दिस इज सी, ये जो अभी हम डिसीज़ देख रहे थे, लंपी स्किन डिसीज़, ये ऐसा कुछ होता है। देखो कैटल की हाइड में ऐसे लंप्स क्रिएट हो गए दिस टाइप। अब ये जो हाइड है, ये हाइड भी यूज़ नहीं हो पाएगा, नॉर्मल जो हाइड का यूज़ हो जाता है कैटल हाइड का फॉर डिफरेंट लेदर मटेरियल बनाने का। प्लस इससे अगर कैटल का लॉस हो रहा है तो जो इसका फार्मर है या फिर जो कैटल ऑनर है उसको इकोनॉमिक लॉसेस भी होगा। सो दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी, लंपी स्किन। इंडिपेंडेंस डे फरवर, उत्तराखंड का प्लान टू मेक अबैंडन ब्रिजेस टूरिस्ट अट्रैक्शन। देन इन्फ्लेशन सॉफन हो रहा है, जो इतना रिकॉर्ड हाई चल रहा था इन्फ्लेशन, अब ये इन्फ्लेशन कम होगा। इवन यूएस में भी इन्फ्लेशन सॉफन होने लग गया है, वहाँ पे भी रेट हाइक्स किए थे उनके बैंक ने। अब देखते हैं, ये जो हॉट मनी फ्लाई हुआ था ये वापस मोस्ट प्रोबेबली अप टू सम एक्सटेंट वापस आ जाना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फ्रिक्वेंटली, क्या ज़रूरत है? आफ्टर टेस्ट अगर डेफिशिएंसी है देन इट इज़ रिक्वायर्ड। विटामिन डेफिशिएंसी से बोन्स भी वीकन होती है, देन रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम एट्सेट्रा में जो आउटडोर सन एक्सपोजर है वो कम हो गया है, सो दैट इज़ वाई सप्लीमेंट्स नीडेड। Who will save the police? Police job is very difficult job, very challenging job. EC has a point, election commission, freebies and Goa's colonial burden, Portuguese. Then this is Seoul, Beijing clash over US missile. France में भी wildfires है. Antarctica crumbling at edges. This is loss to ice shelves. Okay. Inflation fight है. FTA Sensex climb June quarter. Okay, Google opposes FB Twitter plan for self-regulatory body in India and Twitter bot. Actually यहाँ नेट पे रियल कौन है, नॉट रियल कौन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो पर्सन ही रियल और रियल और फेक हो सकते थे, अब तो बॉट्स आ गए, बहुत सारे बॉट्स आ गए। सो दैट इज़ वाई इसको ह्यूमन बनाए रखना प्लेटफॉर्म्स को एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है। So this is the Indian Express. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.